मृगांक। Good evening, sir. Good evening, lordships. आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा। एक बड़ी मशहूर सिंगर थी शुभा मुद्गल, उनका नाम सुना है आपने? हाँ जी सर, शी इज बेस्ड इन महाराष्ट्र राइट नाउ। अच्छा। डज शी आल्सो बिलोंग टू पंजाब? आई थिंक सो। यस। हम्म। एक चीज ये बताइए, कोपाशनरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप? क्या होता है? The when the property is passed on to the LRs, so the co-partners are the LRs, lots. हम्म। तो ये जो पुराना कॉन्सेप्ट था कोपाशनर्स का, इसमें तो खाली मेल डिसेंडेंट्स होते थे। हाँ जी। पार्टनर्स। हाँ जी। इसमें कोई अमेंडमेंट किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसमें फीमेल्स को भी ऑथराइज किया गया? The amendment was made in the year 2005, my lords, and in that the female descendants were also added as the co-partners. हम्म। आपके फैमिली में कोई लॉयर है क्या? वो पीछे में आपकी किताबें बहुत सारी लगी हुई है। And लोग क्या? yes, I am the seventh lawyer in my family, my lords. ओहो। Right now, I was in the office, so that's why. व्हाई आर यू ऑप्टिंग फॉर दिस जुडिशियल सर्विस? Because I think my inclination is more towards solving the disputes. Because when I read the files, I also see what arguments can come from the other side, and sometimes I feel that we are at the side who is at wrong. So I think my inclination is more towards solving the disputes. That's why I want to join judicial services. विदाउट द हेल्प ऑफ अ लॉयर हाउ कैन अ कोर्ट फंक्शन वेल? कहते हैं कि अगर जितने क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट्स अच्छे होते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, हाँ जी। जजमेंट होता है। हाँ जी। Case of assistance in this field, by being a good lawyer also. Why only a judge? Uh, my lords, I think there are enough lawyers and many times the Supreme Court has given the judgment that there are a lot of vacancies which needs to be fulfilled. So I think there are enough lawyers and not enough judges, and I think I can be a good judge. That's why. अगर मान लीजिए वैकेंसीज फिल्ड अप हो भी जाए, तो भी ये कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि नंबर ऑफ जजेस आर होनली इनसफिशिएंट considering the population of the country, and as an Yes. officer of PCSJ you cannot increase the number of seats of judges. Yes, but I can give my very small contribution by giving the exam and becoming a judge. My lords. And what do you expect of out of a good judge? How do Um, हाँ, I expect, lords, I expect a judge to be impartial, unbiased, and no matter how much sympathetic he is towards one party, he has to abide by the law. And yeah, to Deva- the Devang, what is the difference between impartial and unbiased? uh, they are almost the same terms, but unbiased is more inclination towards one side, no matter uh, how much the person is at wrong or not. Unbiased is the And inclination towards one side. sorry, biased is the inclination towards one side, unbiased is the other. Yeah. हाँ जी। bias is a very, well, harsh word. हाँ जी सर। And in law, you are, if you can convey the precise meaning you want to convey with softer words, it is always preferable. मलौज। तो जब आपने impartial कह दिया, तो unbiased दोबारा फिर यूज करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, है ना? सॉरी मलौज। Because you see, language हाँ matters जी। a lot in the field of law. मलौज, I'll take it मलौज। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें
हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। I'm not able to recall, my lords. Sorry. हिंदू मैरिज एक्ट में अगर डाइवोर्स होता है हस्बैंड वाइफ में या जुडिशियल सेपरेशन, हाँ जी सर. बच्चों की कस्टडी किसको दी जाए, इसमें क्या कंसिडरेशंस आउटवे करते हैं और चीजों को? Um, if the child is infant, my lords, then most of the times the custody is given to the mother. But also the earning capacity and the lifestyle of both the sides are seen, and then the custody is given. Also, it is asked in many cases. It is asked from the children that who they want to go with. Why is it asked? Because Uh, so to know about the environment of their family, that who takes more care of them and मतलब ये, who they feel safe with. वही मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा। आप मुझे लग रहा है कि आपकी नॉलेज तो है, लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन है वहाँ थोड़ा सा चीज मुझे लैकिंग दिख रही है। अगर इसका आप आंसर ऐसे करके दें कि आप द अपर मोस्ट कंसिडरेशन इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, कस्टडी ऑथराइज की जा रही है, तो दिस My lords, गेम बी अ बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, my lords, है ना? my lords. तो नॉलेज और उसको उसका एक एक्सप्रेशन आर टू थिंग्स विच गो हैंड इन हैंड। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं, हाँ जी. ये भी आजकल बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं। वायलेंस जो है, जो डाइवोर्सी है, कैन मुस्लिम हाँ लॉ जी. में हाँ डाइवोर्स, जी. हाँ जी. वो अगर रीमैरिज करना चाहती है तो क्या चीजें हैं जो शी हैज टू अंडरगो बिफोर गेटिंग रीमैरिड, so that the other Uh, second marriage may be a valid marriage, treated as a valid marriage in law? the most important thing in Muslim law to get married, to get remarried after divorce, is to undergo the iddat period, my lords, which makes it different from the Hindu law or the other law, which is I think the 260 days, and uh, it is because so to know that the female is not pregnant with the last person she was married with. और मुस्लिम लॉ में जो सक्सेशन है वो थोड़ा हाँ. कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप? सपोजिंग अ पर्सन डाइज इंटरेस्टेड विदाउट एग्जीक्यूटिंग अ टेस्टामेंट, अ विल, तो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होगा? हिंदू लॉ में तो बहुत आसान है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। मुस्लिम लॉ में कौन कितना सक्सीड करता है, कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको? My lords, I've not gone through, but I'll go through it. Uh, I'm not able to recall. I'm sorry. वक्फ से आप क्या समझते हैं? Waqf, Waqf board और नहीं, is the वक्फ का कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ क्या Waqf, है? Waqf is the gift to be which is given in a religious form to the Waqf means the gift, my lords, in the Muslim law. अ, Devang, sorry to interject. Gift to whom? Gift to religious. I'm sorry. I'll go through it. वक्फ जो है वो, कैन इट बी अ टेम्पररी गिफ्ट और इट हैज टू बी इन परपेचुइटी? It has to be in perpetuity in Muslim law. हम्म। Hello. आप कुछ वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी देना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे आप? Lords, it is the governing body of the Muslim religion. So it makes the laws or pass the ordinances uh, in for their religion. हम्म।
अगर किसी चीज का प्रिसाइज आइडिया नहीं है और फिर भी आप हाँ उसको जी। बताने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक हाँ इट इज जी। बेटर टू एडमिट कि entire thing and then I'll be in a better position to answer. Malaj. अगर precise knowledge के बिना जब प्रोसीड करता है with a case, then he is bound to commit mistakes. And since you are Malaj. aiming to become a judge, आपको जो इंटरव्यू बोर्ड है वो असेस कर रहा है यू whether you are suitable for that post or not. तो यही चीजें Malaj. आपने देखेगा, इसलिए Malaj. इस पर कोई लड़ाई ना करिए, जो चीज एग्जैक्टली पता है वो जरूर बताइए and Malaj. express it in legal terminology in simple language, but the language you use should convey the precise meaning of it and it should be soft, convincing yet Malaj. soft. और अगर कोई चीज Malaj. नहीं पता है इट्स ऑलवेज बेटर टू एडमिट कि भाई हमको नहीं पता, हम पढ़ लेंगे समझ लेंगे इसको. दैट वुड शो Malaj. योर विलिंगनेस टू लर्न. Malaj. है ना? यस मिस्टर जैन Malaj. प्लीज. What do you understand by the term mutawalli? Not only. I'm sorry, I'm not able to recall. I'll go through it. Okay. मुस्लिम लॉ आपके सिलेबस में है ना? Syllabus में है, but I think I should go through it once more. So, Okay. There is a concept of muta marriage. Muta marriage. Muta marriage is the marriage uh, which was it was the concept of muta marriage was founded when the travelers from abroad came and they needed a partner or cohabitation for a small time, so that was muta marriage for a time period, for a time limitation. Okay. Does the woman has to go to the go undergo the iddat after the muta marriage? Yes, woman has to go through the that after the muta marriage. Okay. In which sect the muta marriage has been performed? I'm sorry, I'm not able to Okay. recall. Devang, there is a terminology where there is a right, there is a remedy. Yes, yes sir. तो इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, कुछ बताना चाहेंगे? Yeah, where there is a right, there is a remedy. It means that on the infringement of any right which is provided by our constitution on constitution and any other law, on infringement of the right, there is always a remedy which is provided by the law. So There is a legal maxim for this. Do you know that legal maxim? I'm sorry, I'm not able to recall. I'll go through it. Okay. Devang, what do you understand by the concept of protest petition? I'm sorry, I don't know. I'll go through it. I'll go through it. Okay. What do you understand by doctrine of folding of grant of estoppel? I'm sorry, I don't know, sir. I don't. I'll go through it. Devang, when is your interview, my friend? On 25th of February. Okay. That means you have a time. You Yes, sir. should revise. You have to revise lot Yes, of sir. things Yes. because it shows that you have not read things properly. Yes, sir. Okay. I'll go through it. Over to Sunena ma'am. Thank you, sir. Hello, Devang. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है अंडर द एक्ट? हु कैन बी अ रिस्पोंडेंट? Respondent can be the husband or the relatives of husband who uh, who has been uh, who has been alleged by the aggrieved person under the कैन रिस्पोंडेंट ओनली बी अ मेल मेंबर और अ फीमेल मेंबर एज वेल? can the respondent can also be a female member.
लेकिन एक्ट में तो लिखा है कि एडल्ट मेल मेंबर। अगर आप सेक्शन 2Q पढ़ेंगे, एज फार एज आई रिमेम्बर, रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में एडल्ट मेल मेंबर मेंशन्ड है। तो ये चेंज जो आप बता रहे हो कि फीमेल मेंबर भी इंक्लूड होंगे, कैन यू रिमेम्बर एनी केस लॉ ऑन दिस और एनी अदर रेफरेंस? Ma'am, I cannot remember the case law, but as far as I remember is that the complaints that we go through every day, or in IPC also under 498A, the husband or relatives of husband who has committed uh, can be in the respondent. Okay, okay. So what do Sorry, you understand by ma'am, sorry to interrupt. हाँ हाँ Devang, under which section the petition under domestic violence has been filed? Domestic violence comes under Domestic Violence Act only, but I do not clearly remember this section. I'll go through it. You said that you have seen daily the proceedings of the domestic violence. That is That why I I'm was talking asking about you. 498A. Okay, what is the new provision in BNSS for that? 498A. 498. I think 180 in BNS. Are you sure? Yes, I'm sure about it. Okay, over to you, ma'am. ओके सर। सो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हो? I'm sorry, ma'am. I don't remember. ओके। हाउ वुड यू डिफाइन गिफ्ट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? Sorry, ma'am. गिफ्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? Uh, Gift is the transfer of property without any consideration uh, in the love and affection to any person. That is gift, ma'am. तो शैल इट बी वॉलेंटरी और फोर्स्ड भी हो सकता है? It shall be voluntarily. वॉलेंटरी ना। तो जब भी आपको डेफिनेशन बताओ, उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स यू शुड बी एबल टू कन्वे एट वंस। जी मैम। ठीक है। अगर कोई गिफ्ट किया जाता है तो उसको क्या रिवोक भी किया जा सकता है या फुल एंड फाइनल हो जाता है? फुल एंड फाइनल हो जाता है मैम, एंड पोजेशन हैज टू बी ट्रांसफर्ड। देयर आर सर्टेन कंडीशंस मेंशन्ड इन द एक्ट, एक बार आप गो थ्रू करना, अंडर व्हिच गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड। ठीक है। जी सेल को आप कैसे समझा पाओगे? व्हाट इज सेल? मैम, सेल इज transferring any property transferring any property, the ownership of any property to the other person in the exchange of consideration. That is sale, voluntarily. It is made voluntarily. कंसिडरेशन तो जरूरी नहीं कैश के फॉर्म में हो, कंसिडरेशन तो बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है, तो विल दैट आल्सो अमाउंट टू सेल? Yes, my lords, that will also amount to sale. अगर दो लोग एक जमीन के टुकड़े जिनके वो रेस्पेक्टिव ओनर्स एक्सचेंज करते हैं, विल इट अमाउंट टू सेल? That will also amount to sale, my lords. अच्छा, जब आप सेल की बात करो, इज इट नेसेसरी कि पेमेंट एट वंस ही की जाए? No, ma'am, part payments can be made. हाँ, तो जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेल के अंडर सेक्शन 54, तो वही मैं फिर से रिपीट करूंगी कि पूरे इंग्रेडिएंट्स को आप कन्वे करो। जी जी। ठीक है। इसी तरह मैडम ने कैन आपको अभी जस्ट पूछा कि गिफ्ट के बारे में, my lord, मैं एक पॉइजनस स्नेक लेके आता हूँ और आपको अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली आपको देता हूँ, my lords. तो जिसके फेवर में गिफ्ट दी जा रही है अगर दे दिया उसको, तो इज द ट्रांजैक्शन कंप्लीट या कुछ और भी रिक्वायर्ड है आपसे? आपकी Accept, डिस्क्रिप्शन है कि नहीं इसमें? जो जिसको गिफ्ट दी जा रही डोनी जो है, उसको कोई उसका क्या राइट्स है इसमें? the acceptance or rejection is the right of the person who to whom the gift is made. Acceptance is, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेप्टेंस बाय द पर्सन जिसको गिफ्ट दी जा रही है, वो भी एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट हो गया टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, वो भी आप मिस my कर? lords.
जैसे आप मिस करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी जैसे मैडम ने आपसे कहा कि an answer should be complete in itself. इफ यू जैसे आईपीसी नहीं है कि आपने पता लगा 4 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसमें एक भी मिसिंग है। हम आप फ्रेंड है, मैंने आपकी जेब से मतलब आपका पेन ले लिया, माई इंटेंशन इज नॉट डिसऑनेस्ट, नॉट टू स्टील इट, तो विल इट अमाउंट टू, मतलब विल नॉट। नो इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं आएंगे तो द आंसर इज मे बी नॉट करेक्ट ऑल्सो। मतलब I'll इसलिए go through. ध्यान देने की जरूरत है आपको इस तरफ भी। जी मतलब मैडम सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्लीज कंटिन्यू। नो नो इट्स ओके सर। लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस होता है? lease uh, in lease the possession is transferred and the person can use the property in the manner he wants to, and uh, in license the use in what sense the property is to be used, that is specified and the license is given for a time period. एक ही इंग्रेडिएंट आपने बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा आपने बताया कि इन वॉट एवर मैनर लेसी जो है यूज कर सकता है प्रॉपर्टी, और लाइसेंस ही नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होता है लाइसेंस। तो ये दो चीजें आपने बताई, इज द आंसर कंप्लीट इन इटसेल्फ? No, my lords. आपको हिट करा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद स्पेसिफिक एग्जांपल देके बताने की जरूरत है, तब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए। आप रिपीटेडली आंसर्स कर रहे हैं विदाउट नोइंग, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग, और जो कन्वे आप कर रहे हैं वो पूरी सी चीज आप कर ही नहीं रहे हैं। दिस इज हैपनिंग रिपीटेडली ऑन एंड ऑन एंड ऑन। I'll go through the syllabus again and I'll precisely answer in the form it is written, my lords. I'll go through. अच्छा, आप गुजरात के बारे में क्या जानते हो? मतलब उसका क्यों इंटरेस्ट आया आपको गुजरात का एग्जाम देने में? एज यू सेड यू आर फ्रॉम हरियाणा। Ma'am, Gujarat is, in comparison to the other states, it is a more developed state. Also, the cleanliness of Gujarat and the history behind it. And I've heard about the Judicial Academy and the judiciary working there. I think it is better than any other state. That's why I am also after graduating, this is the notification that I've got and filled and passed. इस पे मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगी इन माय ओपिनियन, फिर एक बार पैनल मेंबर्स से मैं चाहूंगी कि सजेशन दें इस पे। जब भी हम कोई स्टेट प्रेफर करते हैं ना, इट इज बेटर टू अवॉइड कि हम सिर्फ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट की वो अच्छा स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट है, वहां की जुडिशियल एकेडमी अच्छी है, इन बेसिस पे कभी आंसर नहीं करें। वो हो सकता है आपका एक पर्सनल ओपिनियन हो, बट यू शुड ऑलवेज कन्वे कि आप स्टेट के प्रति लॉयल रहोगे। जो पैनल मेंबर्स हैं उनको ये लगना चाहिए कि यू लाइक द स्टेट एंड नॉट द मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। तो इस पे Ma- थोड़ा सा मैं हरकौली सर और पुनीत सर से भी सजेशन चाहूंगी कि कैसे इसको आंसर करना है। यू आर राइट, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल साइड ये है कि मैंने कुछ बच्चों से बात करी, गुजरात कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तनख्वाह का पार्ट और पर्क्स, कुछ स्टेट देती है, तो जो रिचर स्टेट्स है वो ज्यादा अच्छा देती है। जैसे गुजरात में इन्होंने क्या किया है कि शायद जुडिशियल ऑफिसर्स में जो गाड़ियां प्रोवाइड करी हैं वो हियरार्की में थोड़ी नीचे तक आ गई हैं पंजाब के मुकाबले। इन्होंने गनर्स प्रोवाइड किए, जो रेजिडेंसेस प्रोवाइड किए वो सबको टाइप 5 कर दिए टाइप 4 की जगह। तो इस तरह के एडवांटेजेस हैं गुजरात में, जिस वजह से बच्चे थोड़ा सा टेम्प्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट हो रहे हैं सर। तो ये प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मैटर है, दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। और अगर आप देवांगी सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये सब एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम दीज शुड नॉट बी द अल्टीमेट कंसिडरेशंस फॉर ऑप्टिंग फॉर अ जॉब, स्पेशली फॉर अ जॉब लाइक जुडिशियल सर्विस। So, दिस इज अ नोबल जॉब जहाँ पे बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट आप होते हैं, आदमी जब सब तरफ से तंग आ जाता है तब आपके पास आता है। और Malad, पब्लिक अगर किसी के साथ ज्यादती करते हैं ना, तो Malad, उसके पास आपके अलावा कोई और फोरम ही नहीं है जहाँ जा सके। अगर आपसे भी एक उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा तो उसके साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। और आप Malad. जानते हैं
ये जो जाति होती है धीरे 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 परकोलेट करके बढ़ती चली जाती है सोसाइटी में, एंड इट कैन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कंसिडरेशंस भी इक्वली आपके माइंड में होने चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा, ये तो हर आदमी सोचता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट दिस शुड नॉट बी द अपर मोस्ट कंसिडरेशन इन योर माइंड, स्पेशली मतलब फॉर जुडिशियल सर्विस। राइट, प्लीज। मतलब So Devang, जैसे सर ने बोला है, you should also kept in mind that you are the custodian of the fundamental rights of the people. सर सर ने बिल्कुल ठीक बोला है, courts are the last resort. So you have to keep that things in the mind apart from those materialistic things. yes sir, sure sir. And I'll with respect to the question answers, मैम ने और सर ने आपको बिल्कुल करेक्टली बोला है कि आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कीजिए। अगर किसी चीज का अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन द आंसर, थिंक अबाउट इट sir रेदर देन गिविंग अ रॉन्ग आंसर। और आपको sir अभी टाइम है, आपको चीजों को ब्रश अप करना पड़ेगा, आपको चीजों को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। अभी कुछ कुछ जगह पर कमियां हैं देवांग, वो आपको आइडेंटिफाई sir करनी पड़ेंगी और आपको उनको करेक्ट हाँ जी करना पड़ेगा। हाँ जी सर, I'll do that. और देवांग, थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे आपने स्टार्टिंग में डीवी एक्ट रिस्पोंडेंट वाला जो क्वेश्चन आंसर किया, एक हरसोरा वर्सेस हरसोरा का बहुत लैंडमार्क केस है, 2016 का ये केस है। तो जो भी जी ऐसे लैंडमार्क केसेस होते हैं उनका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जी मैम, जी मैम, ठीक है। और जैसे पैनल मेंबर्स ने कहा कि अल्टीमेट गोल आपका सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन करना नहीं होना चाहिए, यू आइडियली हैव टू सर्व द सोसाइटी। तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर में कि आप कैसे जी कंट्रीब्यूट कर पाओगे जी स्टेट को भी। ठीक जी है। इसके अलावा एक सजेशन जो मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूंगी, एज यू आर नॉट फ्रॉम गुजरात, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां पे आपको या तो बेयर एक्ट या फिर न्यूज़पेपर या एनी अदर टेक्स्ट पैनल मेंबर्स बोले कि आप पढ़ के बताओ इन गुजराती। जी मैम, ठीक है। बिकॉज आई हैव ऑल्सो अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम नॉट फ्रॉम गुजरात, तो आई हैव गिवन द इंटरव्यू ट्वाइस और दोनों बार मुझसे टेक्स्ट पढ़वाया गया था, सो एज टू अंडरस्टैंड कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है गुजराती की आपको है कि नहीं, क्योंकि आपको जी केटर वहां पे हो सकता है उस पॉपुलेशन को करना पड़े जो हिंदी और इंग्लिश में वेल वर्स नहीं है, तो लोकल लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हो या नहीं। ठीक है। जी थोड़ा सा जी अपार्ट फ्रॉम रिवाइजिंग लॉ, इस पे भी हाँ जी ध्यान देना कि आप रीडिंग प्रॉपर कर पा रहे हो, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेना। जी मैम, जी। ऑल द बेस्ट। Thank you so much ma'am, thank you so much panel, and All I'll the take it for the suggestions I will. Thank you so much. all the best.